Dear parents, especially the mothers, I have a small request to make in this distracting world where the child is absolutely confused between the real life and the real life. What he is seeing in the internet, the glamour, the fantasy world, the world which is very different from a real world. So, my request to all the mothers is that when the fathers are busy in earning sustenance, you own the main responsibility to groom children at home. Please give your valuable time to your children and care for them. I know you are doing it, but still, whatever extra time we are spending on the mobile phones, I think we should cut down for the sake of our children. Mobiles are distracting and confusing their minds. Please stop this addiction before things go beyond control. I once again request you to have peaceful, happy, connected time at home. Give them the best environment. Boy or girl, don't leave them alone. Be watchful and very, very careful. Let them learn to earn things, respect, love, gratitude, because later on in the life they need this skill. I mean, they have to earn everything in life. They have to earn respect, they have to earn money, they have to earn wealth, they have to earn love and care and gratitude if they are doing it now. So please teach them the best life skills in the early childhood. Nothing is free in this world. We have to pay a price for success. So if we are doing hard work at this time, the school and the parents connected, then definitely this price will give us result which we are paying, which we are the time we are spending on our children, the money we are spending on the education and nutrition of our children. Believe me, mothers and dear parents, the most important money or expenditure which you can do at this moment in your family at this time is your expenditure on the education and the nutrition which you are giving to your children. Because if you spend money on quality education and you spend money on the best nutritional intake which you are giving to your child, definitely we will be able to get good children. They will grow up as an asset for the country, for the community, for the family as a whole. Thank you. Respect you all. Thank you. Dear lovely parents, this world is new to us. Please guide me on a right hand. Please, you are the best. Please stop me when I get wrong, and please praise me when I doing good. Dear Mummy, Papa, I love you both. Please spend time with me. I speak some word for you. Please spend time with me. Thank you very much. I love you. आप मुझे पढ़ाया करें, ट्यूशन नहीं भेजा करें। Dear Mom and Dad, I love you so much. Thank you for raising me, and I hope in the future you treat me the same way you used to do. I love you so much. You are the universe to me, and you are my superheroes. Thank you. Hi Mummy, hi Papa. I love you both so much. I want to tell you that you are the most amazing parents to me. I thank you for being with me in every walk of life and always believe with me. I want to request that please do not compare me with the other children. I shine in my own way. Thank you. Ami, I know that you work really hard and you are always busy, but you see, I'm growing. I want you to help me in taking important decisions of my life. The phone distracts me a lot. I want you to please help me avoid this. You see, I'm growing. I need your time. I want to spend more and more time with you. So please spare some of your quality time for me, and I love you. So this message is for my dearest person in my small world, my Ammi ji. First of all, I would like to say, love you mom. I know your immortal love for me, and I have found you the person who always loves me unconditionally. I know that you are always indulged in the household chores for our family, but I wanted to make you know that what importance you have in my life. And I need you to spend more and more time with me to make me understand this changing world. And in the last, Ammi, I need you for lifetime. Thank you.
पापा, मुझे पता है कि आप घर बहुत कम आ पाते हैं क्योंकि आप भारत देश को सर्व करने में बिजी रहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे आपके साथ घूमना है, अपनी बातें आपको बतानी हैं, मुझे आपके साथ बाजार जाना है, आपको अपने सारे सीक्रेट्स बताने हैं। गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका आज पीटीएम में वेलकम करता हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि अभी हम, क्योंकि पिछले सालों में हम कुछ पेरेंट्स की गैदरिंग करते हैं, उसमें बुलाते हैं सबको, लेकिन अभी तक टाइम के लिए फिक्स नहीं आ रहा था निकल कर। अभी आज पीटीएम का दिन है, तो आप बच्चों के लिए रिपोर्ट कार्ड्स देखने आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हैं। तो मैंने सोचा कि आज 10 मिनट की छोटी सी वीडियो के जरिए आपसे बात कर ली जाए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर मैं क्लास वाइज और ग्रुप वाइज जो है आप लोगों को स्कूल में इनवाइट करूंगा, और वहां पर हम आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे। आज तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड्स आप लेने आए हैं, उसमें आप ये सिर्फ इसको आप एक हाफ ईयरली माइलस्टोन है ये बच्चों के लिए कि आधा साल गुजर चुका है, और आधे साल के बाद जो है उनको अपनी और बाकी है उनका, और उसमें उनको अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा बेहतर करके दिखाना है। तो आज का रिजल्ट जो है कुछ बच्चों के लिए शायद बहुत अच्छा ना हो, क्योंकि उनके लिए सेशन नया शुरू होता है। जो बच्चे नए एडमिशन आए हैं उनके लिए इस स्कूल में थोड़ा सा टफ लगता है उनको पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाई का स्टाइल है, स्टैंडर्ड है, तरीका है, वो थोड़ा सा दूसरे स्कूलों से अलग है, और उसमें उनको एडजस्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए अभी उनके मार्क्स को आप बहुत ज्यादा ये ना करें कि नेगेटिविटी के साथ ना लें उसको। आप सिर्फ उनको, बच्चे को ये कोशिश करें उसको समझने की कि हाँ ये वाकई किस लेवल पर आया है, और उसके बेसिस पर अगर बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है फिर तो कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बच्चे की परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे आई है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, जो मिडिल क्लास का हो, चाहे बड़ी क्लास का हो, तो अब आप उसको बस ये ध्यान देना है कि बेटा अब आपके पास आधा टाइम बचा हुआ है। अब आपको इसमें पुराना वाला जो आपकी लैकिंग्स हैं, जो कमियां हैं, उनको भी ठीक करना है, और आगे वाले को भी कैच करके चलना है। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास और फर्स्ट पोजीशन और थर्ड सेकंड पोजीशन के चक्कर में ना पड़े। आप सिर्फ ये देखें कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस निकल कर आई है वो पिछले सालों की बनिस्बत थोड़ी सी बेहतर है या नहीं, स्पेशली वो बच्चा जो हमारे यहाँ पहले से पढ़ रहा है, और जो नया बच्चा आया है इस साल, उसकी परफॉर्मेंस हो सकता है पुराने स्कूल से काफी नीचे भी चली गई हो। ये काफी होता है, मैंने देखा है। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल नहीं घबराएं। ये बच्चे की रियल परफॉर्मेंस है, जो उसकी रियल सलाहियतें हैं वो निकल के सामने आ रही है। तो अब उस पर हमें काम करना है, उस पर इंशाल्लाह मैं आपको आगे लेके जाना है। दूसरी 1-2-3 बातें और मैं आपसे आज अर्ज करना चाहूंगा कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है कि उसकी ओवरऑल उसके ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है। हम एज ए माँ बाप तो हम सब लोग इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली यही समझते हैं कि हम बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, हम कोई ऐसी कोई लापरवाही नहीं करते। लेकिन बच्चा जो है ना, वो खामोशी से कुछ ऐसी चीजों को देख रहा होता है, इसको बयान नहीं कर सकता, आपके सामने बोल नहीं सकता आपसे। तो आपको उन चीजों पे ध्यान देना है कि हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज हो रही है, हमारे रवैये में ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको बच्चा देखकर उसके ऊपर सही असर ना ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना है, मुझे अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे बिहेवियर में, मेरे मामलात में, मेरी बातचीत में, मेरी जबान में, मेरे घर के रहन सहन में, मेरे कपड़े और सलीकों में, मेरे काम करने के सलीकों में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी उसी तरह से करे। तो अगर आप ऐसी कोई चीज देख रहे हैं अपने अंदर कि आप अपने बच्चे को अपने आप से बेहतर देखना चाहते हैं, तो आपको भी बेहतर करना पड़ेगा। तो हम इस चीज पे भी जोर देते हैं कि बच्चे का जो है खाली पढ़ाई के साथ साथ ये जरूरी नहीं कि सिर्फ उसके नंबर ही अच्छे आए, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी निकले, वो अच्छा बोलना सीखे, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए दूसरों के सामने। तो उस बात पे भी खास तौर से ध्यान देना है कि अगर कोई मेहमान घर में आ रहा है तो हमारा बच्चा उसके सामने कैसे पेश आ रहा है, उसकी हम तरबियत वहाँ पे कैसे कर रहे हैं, वो कहीं नई जगह जाता है तो वहाँ पे कैसे पेश आता है, उसकी सोच कैसी बन रही है, उसके अंदर थिंकिंग क्या डेवलप हो रही है। तो आपने इन पे भी ध्यान देना है थोड़ा सा, क्योंकि स्कूल में इसके ऊपर काफी काम होता है। बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। फिजिकल तो चलिए ठीक है, जिस्मानी है, आप उसको अच्छा खिलाएंगे, अच्छा वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा फील्ड वगैरह में, हम भी इसलिए स्पोर्ट्स में और एक्सरसाइजेज वगैरह में
उस पर भी हम काफ़ी ध्यान देते हैं। तो आप भी थोड़ा सा घर पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चा लथार्जी ना हो, हर वक्त लेटा ना रहे, हर वक्त मोबाइल पे ना लगा रहे। अक्सर बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वेट बढ़ रहे हैं, तो वो भी आप ध्यान रखें। या फिर बहुत कमज़ोर हैं कि उनको फिजिकली वो थोड़ा सा भी एक्सरसाइज वगैरह ग्राउंड में नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे मैंने देखा है कभी कभी असेंबली में 10 मिनट भी खड़े नहीं हो पाते, उनको चक्कर आने लगते हैं। तो घर में अपने खाने पीने का निज़ाम, उनको सुबह तैयार करते वक्त उनके नाश्ते का इंतज़ाम, ये सब माओ को देखना है। और इसके बहुत खाली पैसे दे के जाओ कैंटीन से खा लेना, ये काफ़ी नहीं होता है। आपको घर से उसके बच्चे के टिफिन बना के ज़रूर भेजना है और उसको इंसिस्ट करना है कि वो टिफिन खत्म करके आए। दूसरी बात, अब बड़े बच्चे अक्सर नहीं लाना चाहते टिफिन, नहीं खाना चाहते, तो आपको उनको बहुत प्यार से समझाना है कि बेटा आपको टिफिन लाना है। उसके अलावा थोड़ी बच्चों की सफाई, मैं देखता हूँ कि अक्सर यूनिफॉर्म जो है काफ़ी गंदी भी दिखती है, बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहन के आते हैं। अक्सर मैंने देखा फ्राइडे सैटरडे जो एक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म का दिन कहलाता है, उसमें भी बच्चे बाकी 5 दिन वाली जो ग्रीन यूनिफॉर्म है वो पहन के आ जाते हैं। जूते ठीक से नहीं पहन रहे हैं, कुछ बच्चे कोई जूता पहन लेता है, कोई कुछ पहन लेता है। तो ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। आई कार्ड नहीं होता है अक्सर बच्चों के घरों में, वो घर में भूल आते हैं, नहीं लाते हैं। तो आपने घर में बच्चे को रुखसत करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, उसको बाकायदा हर चीज़ उसकी चेक करते। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नर्सरी और छोटे बच्चे पे ही किया जाए, या आप 7वीं 8वीं 10वीं तक के बच्चे को भी आप गौर से देख सकते हैं। और स्पेशल प्रॉब्लम अगर यहाँ पे कोई 11th 12th वाले पेरेंट्स बैठे हैं, तो मैं उनको भी कहूँगा कि आपके बच्चे बड़े हो गए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दें। उनको भी आप उसी तरह से तवज्जो दें, उसी तरह से ध्यान दें जैसे आपने उसको बचपन में उसको ध्यान दिया था। तो आप देखेंगे कि वाकई उसके साथ कनेक्टिविटी बना के रखें। बच्चे के साथ ताल्लुकात जो है वो हमेशा हेल्दी रहने चाहिए। बच्चा आपको देखिए भागे नहीं। आप घर में अक्सर देखा जाता है कि बाप अंदर आते हैं तो बच्चा छुप जाता है, बाहर निकलने की कोशिश, सामने नहीं आता है, बातचीत अच्छे से नहीं करता है, अपनी चीजों को शेयर नहीं करता है। तो ये क्यों हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, उस पर भी गौर करना है। जो छोटे पेरेंट्स बच्चे हैं, तो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो इस पे देखें कि उनके बड़े होने तक उनके घर में और उनके बीचों में ये हालात पैदा ना हो। तो ये सब चीजें देखने की होती है, छोटी छोटी सी बातें हैं जो परवरिश है। क्योंकि अब देखिए स्कूल में आने का मकसद जो है, बच्चा स्कूल में तो 5-6 घंटे रहता है मुश्किल से, तो उसमें जो टीचर को पढ़ाना भी है, उसकी हर चीज पे भी ध्यान देना है, लेकिन वो ज्यादातर टाइम आपके पास बिता रहे हैं। अब उसमें से कुछ टाइम जो है वो ट्यूशन में चला जाता है। तो ये भी एक बड़ी मुझे समझ नहीं आता कि इतना ट्यूशन क्यों पढ़ना चाहिए बच्चों को। मैंने देखा कि यहाँ नर्सरी से ट्यूशन चालू हो जाती है, फर्स्ट क्लास से ट्यूशन शुरू हो जाती है। नहीं, ट्यूशन का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बड़ी क्लास में जाकर पूरे साल में वो थोड़ा सा कमजोर रही है किसी और वजह से, इस वजह से नहीं कि वो स्कूल नहीं आ पाया इस वजह से, या फिर उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ खुदा ना खास्ता, कोई ऐसी वो पूरी तवज्जो नहीं दे पाया, तो एक सब्जेक्ट की, 2 सब्जेक्ट की, 1 महीने की, 2 महीने की कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग आप करवा सकते हैं। ये नहीं कि आपको पूरे साल उसको मुतावाते उसको ट्यूशन में रखा हुआ है। तो ट्यूशन में क्या हो रहा है कि टीचर जो है वो पता नहीं कौन है, अनट्रेन्ड है, ट्रेंड है, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं। क्लास में जो ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वो खास ट्रेनिंग होती है कि इसको आपको इस तरह से पढ़ाना। टीचर अपना काम देती है, ट्यूशन वाले अपना काम देते हैं। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो क्लास वाले होमवर्क करे या ट्यूशन का बताया वाला काम करे। अब अल्टीमेटली क्या होता है कि उसको उसके पास टाइम ही नहीं होता, तो क्लास में आके भी एम्बैरेस होता है, तो उसको वहां पे भी शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि उसका काम नहीं हुआ होता है पूरा। वो फिर बहाने मारता है, फिर वो झूठ बोलना सीख जाता है। तो तमाम देखेंगे आपको धीरे धीरे, और उसको कुछ समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जब तक वो बच्चा उस चीज को घर जाकर दोबारा नहीं पढ़ेगा तब तक उसको वो चीज समझ नहीं आएगी। इसी तरह से जो अगले दिन पढ़ाया जाना है, घर से बच्चा उसको थोड़ा सा सरसरी निगाह से उसको समझ के पढ़ के नहीं आएगा, तब तक उसको वो अगले दिन का चैप्टर भी समझ नहीं आएगा। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। जो माएँ थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हैं, छोटे बच्चे को तो हर माँ बिठा सकती है अपने पास, बड़े बच्चे को थोड़ा सा ये है कि अगर हो सकता है उसकी कुछ काम नहीं है तो कम से कम उसे बिठा के अपने सामने आप होमवर्क करा लें। अगर बच्चा स्कूल का दिया हुआ काम खुद अपने आप घर पे करने लगे तो उसको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अक्सर जो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम देख रहा हूँ बच्चों की, उनको समझ में भी आ जाता है, उनको पता भी होता है टॉपिक, और वो सिर्फ उनके बीच में जो कमी आ रही है वो आ रही है उसको वापस लिखने को लेकर। जो उनको समझ में आया है उसको पेपर पर कैसे उतारना है, उसको कैसे लिखना है, तो वहां पर लैंग्वेज की कमी नजर आ रही है बहुत ज्यादा।
तो बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं क्योंकि इंग्लिश स्कूल है, हर चीज इंग्लिश में लिखनी है उनको, भले ही वो बातें ना कर पा रहे हो लेकिन लिखना तो लाजमी है, नंबर तो उसी पर मिलेंगे जो उन्होंने लिखा होगा। तो आपको अगर ये चीज लगती है कि उसके लिखने में कमजोरी है, वो इंग्लिश को लिख नहीं पा रहा है ठीक से, तो आप अगर ट्यूशन लगाना भी चाहते हैं तो सिर्फ लैंग्वेज का ट्यूशन लगाएं, इंग्लिश का। कुछ बच्चे उर्दू में कमजोर रह जाते हैं तो उनका रोज उर्दू नहीं पढ़ाएं उनको घर में, उनको 3 दिन इंग्लिश पढ़वा ले और 3 दिन उर्दू पढ़वा ले, वो भी सही है। लेकिन सब्जेक्ट्स उसको खुद पढ़ने दें, खुद रिसर्च करने दें, खुद समझने दें, उसको रटने नहीं है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समझना है। जब वो समझ जाएगा और लैंग्वेज उसकी मजबूत होगी तो अपने आप अच्छा लिखने लगेगा। तो आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी बच्चे की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखें, उसके स्कूल रेगुलर आना है, उसको छुट्टियां मत करवाएं, बिल्कुल नहीं करवाएं। मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ पेरेंट्स आके खड़े हो जाते हैं कि जो हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम बच्चा किसी खाला के घर जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं, इसको जल्दी छुट्टी कर दो, 2 दिन नहीं आएगा। थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है तो छुट्टी, थोड़ा सा मौसम बदलता है छुट्टी, तेज गर्मी, तेज बारिश, तेज बरसात, छुट्टी, जुमा हाफ डे होता है। वो हमने बच्चों की और टीचर्स की, आप सब लोगों की सहूलियत के लिए रखा हुआ है, मगर उस दिन एब्सेंट हो जाते हैं बच्चे। कुछ पेरेंट्स ही कहते हैं कि तू आज क्या करेगा, आज तो जुमा है, जुमा की तैयारी कर ले। या फिर वो समझते हैं कि आज तो हाफ डे छुट्टी हो जाने वाली है, आज क्या करेगा, आज रहने दे। ये मत किया करें प्लीज। बच्चे को जुमा के दिन जरूर भेजें, जरूर भेजें। उस दिन बहुत सारे काम होते हैं, सैटरडे को बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। अब कुछ लोग समझते हैं कि पढ़ाई तो हो नहीं रही, एक्टिविटी हो रही है, छोड़ क्या करेगा जाकर। ये एक्टिविटी ही बच्चे को स्मार्ट बनाएगी, एक्टिविटी ही बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगी, उसको सलाहियत यही चीजें देती हैं। पढ़ना लिखना तो जरूरी है ही, मगर ये करना भी बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, कॉम्पिटिशन्स में, डिबेट में, पोइट्री में, कुछ आर्ट्स में, हर जगह उसको आगे आना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि बच्चा आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, वो आप उससे घर जाके जरूर पूछें कि अब तुम्हें क्या करना है, आज क्या बताया गया, आज मैसेजेस जो आ रहे हैं व्हाट्सएप में, उनको आप जरूर पढ़ें, पूरा पढ़ें और उसको कहीं नोट कर ले, डायरी बना ले उसकी। तो हर चीज की एक्टिविटी जब भी होती है बच्चों को पता रहता है। तो आपका जब तक उनसे ताल्लुक अच्छा बने रहेगा तो बच्चे सब कुछ शेयर करेंगे। नहीं तो कुछ बच्चे छुपा लेते हैं इसी वजह से कि मुझे, मैं कहूंगा, बता दूंगा, तो फिर ये ऊपर मेरे जोर दे देंगे, वहां मैं बताता ही नहीं, खामोशी इख्तियार कर देता हूँ। तो वो इतना समझदार सब बच्चा होता है, छोटा भी होता है। तो खैर आज जो मैं आपसे कॉन्टेक्ट, ये वीडियो जो आपके लिए बनाई है, बेसिकली इसीलिए बनाई है कि आप इन चीज़ों को ज़रा ठीक से समझें। और वाकई एक चीज़ और परेशानी थोड़ी सी हमें पेश आती है, वो आती है फीस को लेकर। मेरे ख्याल से बहुत थोड़े से पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल वक्त पे अपनी फीस जमा कर पाते हैं। बाकी ज्यादातर पेरेंट्स मैंने देखा है जो सब डिले करते हैं, और डिले करने में पेनल्टीज होती हैं। पेनल्टी देने के वक्त फिर उनको परेशानी हो जाती है कि वो पेनल्टी नहीं देना चाहते। कुछ लोग इस पेनल्टी को लेकर नाराज भी होते हैं और यहाँ पर स्टाफ के साथ थोड़ा सा रूड बिहेव करते हैं, थोड़ा गलत बात करते हैं। देखिए, स्कूल की जो भी रूल्स हैं आपको उनको फॉलो करना चाहिए। और ये इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सारे प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इसी तरह से चलते हैं, इसी वजह से इतनी क्वालिटी दे पाते हैं, इसी वजह से टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने की है, क्योंकि ये एड नहीं आती यहाँ पर, ना कोई चंदा आता है। जो भी स्कूल फीस वगैरह से, फीस से ही चलता है, सारी तनख्वाहें, सारे बिल, सारे सब कुछ, सब इसी से निकलता है। तो प्लीज़ इसमें आप ध्यान रखा करें थोड़ा सा। हमने आपके लिए एक फीस बुकलेट बना के बच्चों को दे रखी है। अक्सर की पेरेंट्स की मैंने यहाँ पे देखा है फीस बुकलेट तो खो गई है, सब वो तो मिल नहीं रही है, कहाँ है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों की एक फाइल बनाएं, उनपे उनके सारे डॉक्यूमेंट, उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो एक नोट्स बना के उसमें रख दें, तो आपको याद रहेगा। एक मेटिकुलस, एक अच्छा से काम हो पाएगा उनके ऊपर। बच्चों का कैलेंडर होना चाहिए घर में अलग से, बच्चे उस पर मार्किंग करना चाहिए कैलेंडर के ऊपर। कुछ पोस्टर्स बना के अपने जहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं वहां पर अपना करिकुलम बनाकर लगाएं। कोशिश ही करेंगे जैसा बच्चे का स्कूल में एक टाइम टेबल होता है, उसी तरह घर में भी एक टाइम टेबल हो, घर में भी बच्चा उसी टाइम टेबल के हिसाब से चले। तो आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं और इंशाल्लाह बच्चा अच्छा करेगा। तो ये छोटी मोटी बातें थी, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। बाकी तफसील में जो बात होंगी, तफसील में जो मैं आपसे भी राय मशवरे लूंगा, वो अभी मैं इंशाल्लाह अगले महीने से रूटीन शुरू करने वाला हूँ। और मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आपको जरूर शिरकत करनी चाहिए, उसमें कोशिश करें कि सभी लोग आए।
क्योंकि हमारे यहाँ सब पेरेंट्स आते नहीं है। आज भी अगर आप आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है आप सबको देखकर यहाँ पर, लेकिन वो 100% नहीं आते, 70% भी नहीं आते, 60% भी नहीं आते। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियसनेस है। तो ये सब चीजें हैं, आप जिनके भी कॉन्टेक्ट्स में हैं आप उनको बोला करें कि चलिए भाई आज पीटीएम में आप चल रहे हैं कि चलिए हम भी चलते हैं, आप भी चलिए, और आके टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें, बच्चे के बारे में मालूमात करें, और जो भी चीज़ टीचर्स बता रही हैं उसके ऊपर गौर करें, और फिर देखेंगे आप इंशाल्लाह हम और आप मिलकर बच्चे के लिए बहुत मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह उसको ऐसी मंजिल तक पहुंचाएंगे जहां पर वो आपके लिए एक बहुत अच्छी औलाद बनकर साबित होगा और आपके लिए एक जरिया बनेगा कि आप उसको एक ठंडी निगाहों से देख पाएंगे और आपके लिए राहत और सुकून देगा। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप स्कूल में आए और आपने बच्चों के भी ख्यालात देखे सुने, जो बच्चों ने वीडियोस बना के दिए तो वो सभी के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे ने बनाई है वो उसी पेरेंट्स के लिए, वो सभी के लिए जिसको जहाँ कुछ कनेक्शन नजर आता हो उसको समझ ले, उसको देख ले और उसके ऊपर अमल करे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, जज़ाक।